हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। अगेन मैं आपके लिए लाई हूँ एक जॉब वैकेंसी। तो चलिए पता करते हैं कि जॉब वैकेंसी कौन सी कंपनी की तरफ से या फिर कौन से सॉफ्टवेयर की उन्हें नीड है, जॉब रोल क्या है। तो उसके पहले हम सुनते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को। चलिए तो फिर हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को मतलब कौस्तुभ पानसे सर को हम सुनते हैं। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled the survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason: you don't know what will be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kinds of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो. तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो. जहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो. अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो. देखो उस पर कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या. अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना. अभी जहाँ पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए. मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए. Yeah, so that is how you have to go about the business. ओके, तो आपको पता चला होगा, अगर आपने सर को सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब ओपनिंग से. तो जॉब ओपनिंग जो है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग की. मतलब इंटीरियर डिज़ाइन की एक पोजीशन है, उसके लिए ये जॉब वैकेंसी है. तो इंटीरियर डिज़ाइनर का रोल क्या रहता है, इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं. तो चलिए पता करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं. तो इंटीरियर डिज़ाइनर क्या करते हैं कि डिटरमाइन द क्लाइंट्स गोल एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट.
Then consider how the space will be used and how people will move through the space. Then sketch preliminary design plans including electrical and partition layout. Then specify materials and furnishing such as lighting, furniture, wall finishes, flooring and plumbing fixtures. Then create a timeline for the interior design project and estimate project cost. Then oversee construction and coordinate with general building contractors to implement the plans and specifications for the project. Then visit the site after the project is complete to ensure that the client is satisfied. मतलब क्या कि अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट है तो उसके हिसाब से उस क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर प्रोजेक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी होगी और उसके हिसाब से आपको वो डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो उस डिज़ाइनिंग में क्या रहता है कि लाइटिंग, फर्नीचर, पिक्चर्स या फिर वॉल फिनिशिंग, फ्लोरिंग, ये सब जो है वो आप ऐड कर सकते हो। ये सब जो है उसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो ये सब जो है वो किस सॉफ्टवेयर में करेंगे आप, या फिर कौन सी सॉफ्टवेयर की नीड है ये सब करने के लिए। तो कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो मेल का, तो इन्होंने बताया है कि कंपनी का प्रोफाइल जो है दे आर इनटू इंटीरियर डिज़ाइन, मतलब वो इंटीरियर डिज़ाइन में है लेकिन उनके कंपनी का जो नाम है वो ओपन नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी, तो उनके एक्सपेक्टेशन है कि गुड नॉलेज इन इंटीरियर डिज़ाइन प्लस प्रोफिशिएंट इन ऑटोकैड एंड स्केचअप। अब ऑटोकैड और स्केचअप सॉफ्टवेयर है क्या, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है, तो ऑटोकैड एक डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, मतलब उसमें आप डिटेल में ड्राइंग कर सकते हो। और स्केचअप क्या है, तो स्केचअप एक मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, मतलब आप जो प्लान है, आपके पास जो प्लान होगा वो आप प्लान ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डिटेल में ड्राइंग दिखा सकते हो, डिटेल ड्राइंग कर सकते हो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि आप हैंडली जो मतलब हाथ से आप ड्राइंग निकालते थे पेपर पे, एक A4 साइज का पेपर था, उस पेपर पे आप हाथ से ड्राइंग निकालते थे, स्केल मेजरमेंट लेके आप ड्राइंग निकालते थे और उसकी ब्लूप्रिंट आप सबमिट करते थे। वो तो साइट पे जो थी वो उसी की ब्लूप्रिंट यूज़ करते थे। अब वो ज़माना गया जहाँ पे ब्लूप्रिंट या फिर हाथ से ड्राइंग करना ये सब हुआ करता था। अब एडवांस वर्जन है, तो एडवांस में आप क्या करते हो कि आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में वो जो आप हाथ से ड्राइंग निकालते थे वही ड्राइंग आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो पीसी में आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप ये ड्राइंग निकाल सकते हो। तो उसमें डिटेल में रहता है कि मतलब डिटेल में मेजरिंग रहती है, कौन सी रूम क्या है, मतलब किचन कहाँ पे है, बेड कहाँ पे है, वॉल थिकनेस कितनी है, कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, या फिर डोर कितने हैं, विंडोज कितने हैं, वो सारा एस्टिमेशन जो है उसका टेबल जो है वो ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ऑटोकैड का यूज़ होता है। अब स्केचअप सॉफ्टवेयर है क्या, या फिर स्केचअप धीरे क्या है, तो स्केचअप क्या है, ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। अब गूगल का एक स्केचअप करके एक सॉफ्टवेयर है, स्केचअप ये मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। तो मॉडलिंग मतलब क्या कि आप ऑटोकैड में सिर्फ 2D या 3D कर सकते हो, 2D प्लान जो है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसका मॉडलिंग मतलब वो इन फ्यूचर कैसे दिखेगा, या फिर उसके बेडरूम कहाँ पे होगी, या फिर बेडरूम कहाँ पे होगी ये तो आप ऑटोकैड में देख सकते हो, लेकिन बेडरूम कैसी होगी, बेडरूम में बेड की पोजीशन कैसी कहाँ पे होगी, या फिर हॉल में फर्नीचर कहाँ पे होगा, ये सब जो है ये आप स्केचअप में दिखा सकते हो। मतलब स्केचअप क्या है, एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्डिंग ऐसे दिखेगी, ये आप अभी से स्केचअप में ड्रॉ कर सकते हो, ये आप स्केचअप में दिखा सकते हो। तो स्केचअप जो है वो मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। अब गुड नॉलेज इन इंटीरियर डिज़ाइन, अब गुड इंटीरियर डिज़ाइन मतलब क्या, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन में आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगा, तो हमारे जो प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है, मतलब हमारे जो डायरेक्टर है कौस्तुभ पानसे सर, उनका वीकली एक सेशन होता है स्पेस डिज़ाइन का, मास्टर क्लास रहता है, लाइव मास्टर क्लास रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटीरियर डिज़ाइन में, स्पेस डिज़ाइन में, तो वो मास्टर क्लास आप अटेंड करो। उनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मैंने ऐड की है, तो वो आप लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो तो आपको इंटीरियर डिज़ाइन का नॉलेज मिलेगा। और अगर लाइव मास्टर क्लास नहीं भी अटेंड कर सकते आप, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में स्किल अप सेक्शन में आपको उनका रिकॉर्डेड वीडियो हमने दिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सब जो है ऑटोकैड और स्केचअप सॉफ्टवेयर जो है उनकी सैलरी क्या है, तो सैलरी जो है वो डिपेंड रहती है इंटरव्यू और परफॉर्मेंस पे। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन इंटरव्यू एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। तो सैलरी तो आपकी डिपेंड रहेगी इंटरव्यू के ऊपर।
ओके तो मैंने जैसे कि बताया ऑटोकैड और स्केचअप सॉफ्टवेयर जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हो। तो यूनिवर्सिटी है क्या, तो डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है जो हमने बनाया है उसमें जाके आप ये दोनों सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पोर्टल को। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो और ऑटोकैड स्केचअप सॉफ्टवेयर सीख लो। प्लस आप हमारे कौस्तुभ सर के भी जो लाइव सेशन है वो भी अटेंड कर सकते हो, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर के जो सारे सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो। अब ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे है यूनिवर्सिटी पोर्टल में, तो स्पेस डिज़ाइन में मॉडलिंग फंडामेंटल्स में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, सेम स्पेस डिज़ाइन में मॉडलिंग फंडामेंटल्स में स्केचअप सॉफ्टवेयर भी है। तो ये जो दोनों सॉफ्टवेयर है वो आप यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हो। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर तो आप यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हो, तो यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा सीखने के लिए है, जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स है। मतलब क्या क्या आप स्किल अप सेक्शन में जाके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स भी आप सीख सकते हो। मतलब इंटरव्यू में जाके कैसे बोलना होगा, आपको कैसे फॉर्मल वेयर कैसे करना होगा, ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, या फिर आप इंटरव्यू में जाके पहले आपका इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो, ये सब जो है वो हमने स्किल अप सेक्शन में इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल में हमने ऐड किया है। तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो कि इंटरव्यू में आप इम्प्रूव कर सकते हो आपके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स। देन सेल्फ मोटिवेशन, मतलब क्या, अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, तो आप इंटरव्यू में जाके अगर आपको आता भी है तब भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं हो, आपके पास वो मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन स्किल्स की भी मोटिवेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मोटिवेशन कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, तो उसके लिए भी हमने स्किल अप सेक्शन में एक सेक्शन ऐड किया है छोटा सा सेल्फ मोटिवेटेड करके, वो आप देख लो तो आप अच्छे से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू के लिए। आपको सारे सॉफ्टवेयर डिटेल में मिलेंगे, सारे सॉफ्टवेयर आप डिटेल में सीख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी का मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया है जो मतलब एक यूजर इंटरफेस है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो और डिटेल में देख सकते हो यूनिवर्सिटी को। अगर आप यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर सीखने हैं और आपको अच्छी कंपनी में प्लेस होना है, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो हमें, तो आप यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।